दे थिंक दैट यू कांट यूज द वॉशरूम एंड वॉशरूम नहीं जा सकते. Oh. तो ये क्वेश्चन तो मेरे हर रील में आता है कि हाउ टू भूल जाओ वॉशरूम जाना. इस टाइप के कमेंट्स क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं. तो आई हैव ट्राइड टू आंसर दोज क्वेश्चंस ऑल्सो बिकॉज आवर एंसेस्टर्स ऑल्सो वो धोतीज एंड ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं जाते थे वॉशरूम. जी. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट. ट्रोलिंग सबको ही मिलती है, कोई कितना भी अच्छा हो, सबको आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ट्रोलिंग मिलती भी है तो आई डोंट गेट अफेक्टेड फ्रॉम इट. मेरे को तो कंटेंट आइडिया मिल जाता है ऑनेस्टली. लाइक जी. सो मेनी पीपल आस्क मी, अरे पानी पीना भूल जाओ, अब धोती पहन ली तो लाइक वॉशरूम जाना भूल जाओ. आई मेड अ वीडियो एक्सप्लेनिंग हाउ यू कैन गो टू द वॉशरूम. Right. Then somebody commented once कि मम्मी की साड़ी ले ली, अब I know you wear a पर्दा ले लोगे, अब कर्टन से पहनोगे. तो I actually took a curtain and I draped a dhoti with it. You had a funny take on that. Yeah, yes. so people absolutely loved it because वो बहुत ही regal look बन के आया था जो उसमें मैंने actually curtain drape किया था. Hello, everyone, and welcome to the show Voice of Mosaic, where we celebrate people, their ideas, and inspirations on sustainability that show us how we can adopt sustainability in our lives. On today's show, we have a very special guest, Rohit Bose. He's promoting Indian heritage fashion like no other. We can say about Rohit that he is here to revive the dhoti kurta culture for the Indian men. In today's time, when India is going for fast fashion and choosing comfortable Western wear, Rohit is putting on center stage Indian heritage fashion, local culture, local artisanship, our weaves, patterns, and fabrics. And this is celebrating sustainability in fashion. Welcome to the show, Rohit. How are you? Thank you so much. I'm really good. Happy to be here. अच्छा लग रहा है. Seems like a good day. बहुत बढ़िया. सो मेरे आपसे 2 सवाल हैं. पहला Okay. ये कि आप क्या करते हैं, हमारी ऑडियंस जो आपको नहीं जानती है, जो आपको पहली बार देख रही है, आप उनके लिए बताएं कि आप क्या करते हैं. और दूसरा सवाल ये है कि आपकी जर्नी फैशन में कैसे शुरू हुई. ओके, सो जो लोग मुझे जानते हैं दे नो मी एज अ कंटेंट क्रिएटर. मैं पिछले 4-5 सालों से आई बीन क्रिएटिंग कंटेंट एंड आई फोकस ऑन रिवाइविंग द धोती एंड ब्रिंगिंग इट बैक. सो दैट इज व्हाट आई डू एज अ कंटेंट क्रिएटर on Instagram and on YouTube. जी. Apart from that, I run a digital marketing agency. So I do these 2 things simultaneously and I sing also. So yeah, these things. इंटरेस्टिंग. और दूसरा सवाल The journey. यस, द जर्नी. तो ये कैसे आपको आइडिया आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई? एक्चुअली मैं बचपन से ही पहनता था धोतीज बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बंगाली फैमिली. तो वी डू वेयर धोतीज ऑल्दो आजकल थोड़ा कम हो रहा है. लाइक यंगस्टर्स डोंट वांट टू वेयर इट बट माय मॉम हैड इम्बाइब्ड दैट इन मी. तो मैं पहनता आ रहा हूँ बचपन से ही. एंड व्हेन आई स्टार्टेड ऑन इंस्टाग्राम आई स्टार्टेड एज अ फिटनेस कंटेंट क्रिएटर. तो मैं फिटनेस कंटेंट डालता था. तो एक बार मैंने सोचा चलो मैं देखता हूँ डाल के आई कैन पुट की धोती का कंटेंट कैसे like how people accept it. And the first time I posted it online, I used my mom's sarees to wear dhotis. So during Durga Puja, I had like draped multiple, different ways and I'd use my mom's sarees. And मैं बहुत ही skeptical होके मैंने डाला था कि what the response will be. Maybe बहुत ज़्यादा trolling होगी, बहुत ज़्यादा people will make fun of it. But fortunately बहुत अच्छे से accept किया गया उसको. कोई like there was no like hatred, no trolling, like everybody loved it. Wow. And then I thought कि since I anyway do it in real life, I should start posting it online also because people are loving it so much, so I should do more of it. And that's how the journey started. So, वहीं से आपको कॉन्फिडेंस मिला. बिल्कुल. And you see that there is a gap. There's a gap in people going for the Indian clothes. Correct. My next question to you is that if we visit a college goer or if we visit the wardrobe of an average Indian male and we open the wardrobes, we'll see probably casual wear, Western wear, formal black and white. Correct. Are the Indian men hesitant to try traditional clothing? And because of this hesitation, not knowing where to start, that's why the wardrobe is missing an ethnic character? I think they are somewhat hesitant, but I think times are also changing because बीच में जो हमारा पेरेंट्स का जनरेशन था ना, they were very, वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था या उस टाइम एक ऐसा थिंकिंग आ गया था कि हमें मतलब ये लाइक सूट्स पहनने चाहिए या फॉर्मल्स पहनने चाहिए. इफ़ यू वेयर अ धोती और अ पजामा यू माइट बी कंसिडर्ड बैकवर्ड. तो आई थिंक एक
एक वो पीछे जो जनरेशन गया है ना, उनका वो थिंकिंग रहा होगा. जैसे मेरे पापा हैं, he has never worn dhotis in his life. Like he would always wear, you know, shirt pants. अभी तो मैं उनको ज़बरदस्ती पहनाता हूँ, बट शुरू में मैंने स्टार्टेड मेकिंग हिम, यू नो, वेयर धोतीज, तो वो बहुत एम्बेरस्ड होते थे कि नहीं मैंने कभी नहीं पहना है. तो आई थिंक अभी आजकल यंगस्टर्स, बिकॉज सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है, वो और भी वो लाइक चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती हैं, सो एंड दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग आज कल्चर. तो आई थिंक वो धीरे धीरे वापस आ रहा है, although टाइम लगेगा थोड़ा, बिकॉज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है. Yes, and everybody is moving towards fast fashion. So, Correct. According to you, I mean, I'm sure you're putting so much content there, और आपको बहुत तरीके का feedback आता होगा. Even male audience and male following आपकी होगी. किस तरह के सवाल आते हैं कि उनकी, अगर आप देखा जाए तो basic struggles क्या हैं traditional clothing को अपनाने में? बेसिक स्ट्रगल्स तो ये है कि एक तो जैसे आई वर्क विद धोतीज, तो धोतीज का उतना ज़्यादा ऑप्शन इजीली अवेलेबल नहीं है. एक तो ये है, तो लोगों को पता नहीं होता कहाँ से दे कैन बाय अ धोती. दैट्स व्हाई आई मेक इट इजी फॉर देम कि लाइक टेक अ साड़ी विच माइट बी अवेलेबल एट होम एंड यूज दैट. एक तो ये है, एंड सेकेंड दे थिंक दैट इट्स इनकन्वीनियंट. दे थिंक दैट, यू नो, यू कांट यूज द वॉशरूम एंड वॉशरूम नहीं जा सकते. तो ये क्वेश्चन तो मेरे हर रील में आता है कि हाउ कैन लाइक भूल जाओ वॉशरूम जाना. इस टाइप के कॉमेंट्स, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं. So I have tried to answer those questions also, because you know our ancestors also wore dhotis, and obviously ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं जाते थे washroom. So it's not difficult. So these are the two struggles I think, which can be easily overcome. And I think fashion के लिए थोड़ा pain तो लेना पड़ता है. So I think while women are at it and trying everything and experimenting, men are a little behind. Correct. What is your opinion or understanding on, you know, how the men are approaching to fashion in general? How are they exploring fashion? I think men still look for ease and comfort mostly. Like I don't want to generalize, but ease and comfort थोड़ा होता है कि जल्दी से पहन लिया, ज़्यादा सोचते नहीं है वो शायद. This is what I feel, because I don't think like that. I तो put a lot of efforts in what I wear. And apart from that, आजकल जैसे Gen Z है, तो Gen Z's का जैसे everything, you know, they have this baggy pants and oversized t-shirts. तो उस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा वो लोग जा रहे हैं. But they are also, you know, ready to accept our culture. And जैसे मैं धोती वगैरह डालता हूँ, तो बहुत सारे youngsters, Gen Z's also, they get, you know, inspired, and वो मुझे बोलते हैं कि, you know, हमने भी आपसे देख के सीखा है, या हमने भी ऐसे पहना है. So that feels really good. So I think it's a mix right now. Yeah. इस पर आप थोड़ा और elaborate करें, जो आपको सुन रहे हैं और जो आपको follow भी करते हैं, and they want to adopt ethnic fashion into Correct. you know their closet, into the wardrobe. So how can they start? You know, just some easy tips. So like YouTube, social media तो भरा पड़ा है with tutorials. अगर आपको धोती ट्राई करना है, अगर धोती आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा है, start with कुर्ता पजामास. Right. Actually ऐसा है ना कि now although ये हमारे कल्चर का अटायर है, बट अभी अगर आप धोती पहनते हो तो you look unique. Although it comes from our culture, but आजकल लोग यूनिक दिखने के लिए या स्टैंड आउट करने के लिए धोती पहनते हैं. Like if I go to a wedding, other people might be in a kurta pajama, or they might be in suits. Yes. And like blazers and all, but if I enter in a dhoti, तो like all eyes turn towards me, you know, like because वो थोड़ा unique लगता है, and मैं थोड़े different टेक्निक से भी पहनता हूँ. तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप थोड़ा स्टैंड आउट करोगे अगर आप धोती पहनते हो. एंड अगर आपको धोती ड्रेप करना डिफिकल्ट लगता है, यू कैन स्टार्ट विद रेडीमेड और प्री स्टिच धोतीज, वो मिल जाएगा ऑनलाइन इजीली. ऑल्दो आई थिंक दे डोंट लुक दैट ग्रेट, बट इफ यू वांट टू मेक अ स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट विद दैट. आपके जितने वीडियोस देखे उसमें आप जिस तरह से अपने ट्यूटोरियल्स देते हैं कि हाउ टू वेयर धोती, एंड द धोतीज आर नॉट प्री स्टिच्ड. I think you're mostly using, you know, your dhoti fabrics or saris. Yes. So it's pretty easy from the tutorial. So anybody who wants to try dhoti and look unique and get the eyes on them. So I think yes, even saris or just you know loose fabric they can try with. Yeah, they can. And मतलब थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है. इवन विमेन फील, साड़ी पहनी होती है तो थोड़ा सम विमेन फील ओवरवेल्म ना, लाइक दे टेक देयर मदर्स हेल्प्स और उनको लगता है कि कैसे पहनेंगे, बट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाता है. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसे गर्ल्स अपनी मदर्स के पास जाती हैं साड़ी के लिए, सो आई थिंक बॉयज शुड आल्सो कैन आल्सो डू दैट. बॉयज कैन एंडोर्स फैशन एंड यू नो एन एंटायर स्केल ऑफ इट. सो while speaking of mother, you have a beautiful mother and you pair with your mother and you do beautiful content. What inspires you about her and how you have teamed up with her on this?
Basically my mom has been very fashion conscious always. तो when she is from Calcutta, तो जब वो बड़ी हुई थी कोलकाता में, तो she was around the the studio locality, वहाँ पे जो movies वगैरह बनती थी, although she had no connections with the movie world, but she was always वो fashion, although they were not from a well-to-do family, she came from a lower middle class family, but बहुत cheap fabrics लेके, मतलब उनका styling sense बहुत अच्छा था. जो भी available होता था उससे she would make awesome outfits, उनको स्टिचिंग भी आती थी, तो बहुत बेसिक सस्ती साड़ी को वो बहुत उससे वो बहुत ही फैशनेबल और यूनिक लगती थी. तो वो सेंस आई थिंक आई हैव इम्बाइब्ड, एंड आई थॉट कि बिकॉज शी हैज सच ग्रेट सेंस, तो व्हाई नॉट ब्रिंग हर इनटू दिस. एंड शी वाज आल्सो वेरी कूल, मतलब उनको लगा था हाँ चलो करते हैं, मतलब वो एंजॉय करती हैं मेरी वीडियोस में पार्ट लेना, एंड लोगों को बहुत अच्छा लगता है मम्मी के साथ जो वीडियोस हैं, तो दैट्स व्हाई. I'm also a follower of your content, and wherever your mother is there, that content is exclusive, it's special. I see, the kind of comments. So you are receiving a lot of encouragement there. Absolutely. आज का हमारा एपिसोड जो है ये है सस्टेनेबिलिटी सेलिब्रेट करना फैशन में. और जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि फैशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि हम जब अपने इंडियन हेरिटेज पे की बात करें तो हमारी लोकल कम्युनिटी कल्चर, हमारी इतनी तरह की वीव्स हैं, हर रीजन की अपनी एक स्पेशलिटी है. तो रोहित, जब आप लेके आ रहे हैं तो कितना आप इस बात को समझते हैं और कि इसमें इतना दम है, इतना वर्जन है कि जब आप अपने कपड़ों में अपने स्टाइलिंग में लेके आ रहे हैं, ऐसी ऑडियंस है जिनको आप जागरूक कर रहे हो हमारे लोकल हेरिटेज, हमारे लोकल कल्चर के बारे में. करेक्ट. तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे ऐसे मतलब वीव्स हैं या लाइक जो पहले होते थे जो लोग हैंडमेड करते हैं, तो वो दोज आर स्लोली डाइंग डाउन बिकॉज सब कुछ फैक्ट्री में बनता है, या वी आर वेयरिंग ब्लेंड्स लाइक पॉली ब्लेंड्स एंड ऑल दोज थिंग्स. तो जो ये ट्रेडिशनल वीव्स हैं उनकी बात ही कुछ अलग है. आई मीन वो आप देख के पता लगा सकते हो. They are so comfortable, and there's a reason they're expensive also because they're handmade. So I think it is important to bring them back so that it doesn't die down. Absolutely. So and मुझे भी like people reach out to me from different states and all कि आप हमारा वो weave पहने, तो it's always a great pleasure. Very interesting, and like you're saying, people are reaching out to you and they want you to showcase their crafts and textiles. How much of the Indian men, and I just want to know, I'm just asking a very basic question. Sure. You are having a social circle, you must be having lots of friends or colleagues, and you're hanging around with them. They know, they identify with you that who Rohit Bose is and what he's here to celebrate in terms of fashion. What are the kind of conversations you are having with your peers, your friends on fashion? On fashion, honestly, with my, like I have a few friends who are into fashion, so उनसे तो होता है discussion. जी. Like what I'm doing, or I sometimes take the suggestions also कि कैसे style किया जाए. Like a very close friend of mine, Joy, he is a fashion designer, उसको बहुत ज़्यादा knowledge है. Although he's not a content creator, तो उससे मैं guidance लेता हूँ. But apart from that, normally with other men, we don't really have fashion conversations. That is very rare, I think. So क्या आपको लगता है कि do you bring it consciously a topic of fashion? If there is some mention of it, do you want to introduce ethnicity? Do you want to introduce heritage clothing to them? Yeah, definitely. मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है, like sometimes people ask me for कि अपने wedding में क्या पहनूं या उसमें क्या पहनूं, तो I always suggest कि यार it's an Indian festival, or like you're getting like it's an Indian wedding, तो please आप लोग Indian पहने, because weddings में भी I mean, I personally would never wear a tux or a blazer, I would always wear Indian. So that is how I try to encourage them. तो आप कह रहे हैं you always try to wear Indian. So for example, अगर आपको एक coffee date पे जाना है, or you just want to, it's a Friday at office and you want to go, and what kind of clothes do you wear? Now I don't want it to like, see if somebody is अब इतना भी you don't have to do it, because some people ask me कि आप हमेशा नहीं पहनते हो, ये तो आप रील्स के लिए पहनते हो या व्यूज के लिए पहनते हो. I'm like, obviously I don't wear it all the time. मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि जैसे some women love wearing sarees also, but they will always not wear sarees, Absolutely. right? So my thing is that some people find कि धोतीज थोड़े अनकूल होते हैं, old fashioned होता है कि हम पहन के निकलेंगे तो ऐसे पंडित जी बोलेंगे लोग, तो वो मेरे ख्याल से they are not brave enough to try. Maybe. Or they don't have the understanding yet. हाँ, तो मुझे वो taboo break करना है. I want them to not feel ashamed. मतलब
ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा धोती पहने. अगर आप कॉफ़ी डेट में जा रहे हैं या जी. मूवी के लिए जा रहे हैं, यू डोंट हैव टू वेयर अ धोती. बट Right. जहाँ आप पहन सकते हैं, किसी शादी में पहनना है, इट्स अ फेस्टिवल, तब आप ज़रूर पहनिए. तब आप लाइक डोंट फील अशेम्ड ऑफ इट. तो मेरा ये है कि मैं थोड़ा उन फेस्टिवल्स और शादियों से ज़्यादा भी पहन लेता हूँ. बट मे बी एट अ कॉफ़ी डेट और अ मूवी डेट आई विल नॉट वेयर इट. But then there are other occasions like Sure. like a Holi, Diwali, or if it's a family gathering. Ji. At such occasions, such places, I prefer to wear a dhoti. You have a variety of textiles, patterns, weaves that you are using in the content. So every content, every reel has, its unique Correct. messaging, So what are your favorite styles that you want to repeat? And the second part of the question is that what is left to experiment? Is there something that you want to try still? There is so much left to experiment with because mostly I drape with silks from various places. Ji. So recently I tried the Assam dhoti drape. So I just used the technique कि वो कैसे धोती पहनते हैं असम में. अच्छा. तो वो मैंने डाला था. बट आई डिडंट हैव द एक्चुअल फैब्रिक, एक्चुअल जो उनका सिल्क होता है, एक्चुअल जो वो कुर्ता पहनते हैं. दे टेक अ गमछा ऑल्सो. सो all those things I didn't have, so I just showed the technique. So I would like to begin with, this is on top of my head, Assam का जो actual silk का धोती होता है या कुर्ता होता है, so that I would like to have. Apart from that, जो मैं regularly करता हूँ, मुझे silks of different types I like to use, like गदवाल्स के साथ बहुत ज़्यादा किया है मैंने. Cotton बहुत ज़्यादा comfortable होता है. Right. Organza is a tough fabric to drape, but वो भी मैंने I'm seeing your recent content and you are focusing on these new fabrics. Correct. रोहित, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या प्लान्स हैं आगे के? Do you want to go to the mainstream fashion? Do you want to connect with big designers, or you want to go international? So see, connecting with big designers, that is like if they see me and if they want to do something with me, I would be happy to do it. My aim as of now is कि जितना मेरा कंटेंट स्प्रेड हो रहा है उतना लोग इंस्पायर हो रहे हैं. जैसे मैं कहीं लाइक एयरपोर्ट्स में लोग आते हैं मेरे पास कि हमने आपका वो देखा है, वीडियोस देखा है, लाइक फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स, किड्स टू वुमेन, मेन, लाइक ओल्डर पीपल. तो सब लोग आके मुझे बोलते हैं कि इट्स वेरी इंस्पायरिंग. एंड तो वही मैं थोड़ा और ज़्यादा करना चाहूँगा. जितना मेरा फॉलोइंग बढ़ेगा, एंगेजमेंट बढ़ेगा और जितना ज़्यादा ये स्प्रेड होगा तो माई मैसेज विल स्प्रेड इवन मोर. सो दैट इज़ द गोल एज ऑफ नाउ कि धोतीज को थोड़ा मैं आई ब्रिंग इट बैक. एंड इट फील्स रियली गुड जब लोग आके बताते हैं कि कि हमने आपसे देख के सीखा है. अच्छा. एंड लाइक सो मेनी विमेन, बिकॉज मेन नॉर्मली वो खुद से इनिशिएट नहीं करते हैं इन चीज़ों को, बट आई गेट अ मैसेजेस फ्रॉम अ लॉट ऑफ विमेन. सो होल्ड ऑन देयर, आप बता रहे हैं कि बहुत सारी विमेन आती हैं आपके पास, तो उनके किस तरह के सवाल होते हैं? बिकॉज आई एम श्योर दे आर नॉट आस्किंग हाउ दे वांट टू try out dhotis, but probably maybe they're asking for their their husbands or their kids. Yeah. So I have draped dhotis with my mom also. So women also try those styles. And of course अपने बच्चों के लिए या husband के लिए तो वो कैसे पहनाना है, मतलब वो इतना पूछते नहीं है, बट लाइक बिकॉज आई हैव सो मेनी वीडियोज आउटसाइड, वो डायरेक्टली ड्रेप करके फोटोज भेजते हैं. लाइक लास्ट ईयर देयर वर सो मेनी पीपल, लाइक thousands of people, I wouldn't say thousands, that's a little bit, but hundreds of people, they had sent me their pictures कि हमने ऐसे पहनाया है. देन मैंने सोचा इतने लोगों ने भेजा है तो लेट्स डू अ कॉन्टेस्ट. तो फिर मैंने वोट भी करवाया था लोगों से, लाइक आई रैन अ कॉन्टेस्ट. तो लाइक आई शॉर्ट लिस्टेड लाइक 60 men, 30 women and some kids also. तो तीनों में मैंने लोगों से वोट्स करवा के I had announced 3 winners. So there were like people who had sent their fathers, like there was a gentleman who was 85 years old. Okay. And so they had draped a dhoti on him. They had sent his entry, and then so many men, women had sent their partners' pictures, and men had sent their own pictures, kids. So like I was overwhelmed. मुझे लगा नहीं था कि like इतना ज़्यादा ये पॉपुलर हो रहा है, बिकॉज मैं तो बस अपना काम कर रहा था. आपके कंटेंट में वायरलिटी है कि वो लोगों को पसंद आएगा. तो I feel really great कि I have been able to inspire people. Wow. In fact, like last year during Durga Puja, I had visited Durga Puja Pandal, जहाँ जो मेरा मतलब वहाँ मैं जाता नहीं हूँ. So I had gone there and it's in Kashmiri Gate, Delhi. तो वहाँ पे I was like, I was amazed because like so many people knew me and like बच्चे बूढ़े सब आके मुझसे पूछ रहे थे कि हमने आपकी वीडियो देखी है, अभी आपसे देख के पहना सीखा है. तो that feels really good and I want to do more of it. बहुत बढ़िया. So that's the idea as of now.
Going international, any plans on the international stage? Indian fashion has always been celebrated. There is, amazing richness in our heritage, and why should fashion be separate? So there is a lot of acceptance, a lot of encouragement. They welcome the Indian designers, as you're seeing, in the news and in so many shows. What are your plans? I think internationally there is a lot of acceptance because उनको बहुत अच्छा लगता है, like looking at other cultures they feel really good because I have a lot of international audience also. तो वो लोग तो बहुत amazed होते हैं कि wow, like this looks so great and so like ethnic, इतने colorful है and इतना कुछ हम कर सकते हैं. It's not so boring ना. There's so much you can do with the fabric. तो उन लोगों को तो बहुत intriguing लगता है. Like I get so many comments from global audience. So I had not thought कि I would tap into that as well, but that is also happening. So that is great. Internationally जाने का सी with social media only I can reach internationally. मतलब मेरा कुछ ऐसे personal वो नहीं है that I want to crack an international deal या कुछ internationally मुझे बहुत बड़ा करना है अपने लिए. But I hope to reach a wider audience internationally also. So that is the goal. But you're open to it because why not? If you have an opportunity to represent, Indian fashion internationally, so you can also take that aspect, which is not, just the runway silhouettes, but or wedding silhouettes, but they are something that everybody can wear on a daily basis. Absolutely. So like if I get to represent India on an international scale, so definitely like that will be quite awesome. रोहित, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे हम सस्टेनेबिलिटी पे हम बहुत बात कर चुके हैं इस शो में, अगर आपको मौका दिया जाए कि आप उन वीविंग टाउन्स में जाएं, विलेजेस में जाएं, जहाँ ये सब टेक्सटाइल्स बन रही हैं, जहाँ ये सब हैंड वोवन काम हो रहा है, क्या आप लेके जाएंगे उन आई वुड कॉल देम डिज़ाइनर्स, उन डिज़ाइनर्स के पास, उन फैमिली रन हाउसेस के पास जो इस तरह का ब्यूटीफुल टेक्सटाइल्स हमको दे रहे हैं? मेरा सवाल ये इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत लोग हम फ्यूजन ट्राई करना चाह रहे हैं. तो एंड अगर आप फ्यूजन को देखें तो चाहे वो फूड में हो, चाहे कोई और सेक्टर में हो, इवन विद फैशन, पीपल वांट टू ब्लेंड एन इंटरनेशनल form or a flavor with an Indian element. So is there something that you want to take to them or anything else that you want to? Basically I would like to ऐसा मैंने करा नहीं है अभी, but I would like to showcase every state, हर स्टेट का जो उनका वीव होता है या उनका स्टाइल होता है. आई वुड लाइक टू डू दैट एंड लाइक इफ आई गेट टू विजिट दोस टाउन्स या जहाँ पे ये काम होता है, तो दैट विल बी ऑसम बिकॉज आई एम श्योर दे विल गेट some limelight. Why? Because you are connecting with so many people who are going to be the adopters of ethnic fashion. आपके through वो ये चीज़ समझ पा रहे हैं. बहुत नए I would say men who have never tried Indian fashion except for the weddings want to. Maybe मैं इस पर इसलिए आपको समझाना चाह रही हूँ कि मेरा सवाल कहाँ से आ रहा है कि अगर हम इंडियन टेक्सटाइल्स की बात करें तो मे बी प्रिंट्स बहुत बोल्ड है, मे बी कलर्स बहुत डीप एंड रिच है, एंड जैसे आर्ट में आर्ट को ब्लेंड किया जा रहा है इंटरनेशनल फ्लेवर के लिए. अभी हमारे लास्ट पॉडकास्ट में हमने किया था संदीप भंडारी जी के साथ, जो गोंदवाना आर्ट प्रोजेक्ट से हैं और वो ट्राइबल आर्ट कम्युनिटी के साथ काम करते हैं. तो वो इंटरनेशनल और इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को लेके जाते हैं ट्राइबल कम्युनिटी में, और वो उनमें इंट्रोड्यूस करते हैं नए मीडियम्स, नए कलर्स, फॉर एग्जांपल पेस्टल्स. सो उसे बिकॉज आप ही लोग हैं जो, आप जब वीवर्स के पास जाएं तो आपको ऑडियंस सुन रही है, आपको ऑडियंस फीडबैक दे रही है, तो आई एम श्योर यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक बैक टू देम, वेयर फ्रॉम वेयर मे बी दे वुड लाइक टू एक्सपेरिमेंट, मे बी डू समथिंग न्यू. आई थिंक आई वुड एक्चुअली लाइक टू प्रिजर्व द ओरिजिनल ऑथेंटिक Interesting. the way they are. फ्यूजन अगर करना है तो आई अंडरस्टैंड, जैसे लोगों को हमेशा धोती और कुर्ता पहनना इट माइट फील ज़्यादा लगे, थोड़ा लाउड आउटफिट लगे, तो आई हैव ऑल्सो दैट्स वाई स्टार्टेड पेयरिंग अप विद शर्ट्स. थोड़ा यू कैन टोन इट डाउन, यू कैन मेक इट मोर कैजुअल, लाइक अच्छा थोड़ा बेसिक धोतीस ले सकते हो या थोड़ा फंकी प्रिंट्स भी ले सकते हो, उनको आप शर्ट्स के साथ पेयर करो, तो उस तरीके से आप फ्यूजन भी कर सकते हैं. एंड इट विल नॉट लुक लाइक कि आप शादी में जा रहे हैं. इट कैन ऑल्सो डू अ कैजुअल अटायर विद धोती. सो उस तरीके से आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट फ्यूजन एज वेल, कि एटलीस्ट लोग स्टार्ट करें किसी लेवल पे धोतीस पहनना. एंड आई थिंक वीवर्स के लिए लाइक आई मीन डिज़ाइंस एंड जो भी मोटिव्स वगैरह होते हैं, जो भी एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स होते हैं, वो तो आई थिंक
like the authentic, it should be Absolutely. authentic, but like pastels and all, जैसे आप कह रहे हैं कि if they try new colors, that will be nice. I think more people would accept them. क्योंकि जितनी समझ टेक्सटाइल्स की, वीव्स की, पैटर्न्स की इंडियन विमेन में है, आई थिंक ये कहना ठीक रहेगा कि लार्जली जो एवरेज मेन हैं इंडिया के, उनमें ये नहीं है. Of course, of course. इतनी हर स्टेट की अपनी एक वीविंग टेक्निक है, जो चाहे हमारे पास पटोला है या पैठनी है या कांजीवरम है या इक्कत है. सो इतनी पहचान, इतनी अंडरस्टैंडिंग इंडियन मेन को नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज जरूरत नहीं पड़ी लोगों को. लाइक औरतें साड़ियाँ पहनती हैं तो वो देख के ही बता सकती हैं. लाइक अगर फेक भी है तो भी लाइक बिल्कुल women can tell like क्या चंदेरी है, क्या what is संबलपुरी and all of that. तो देख के पता चल सकता है. बट men since नहीं पता होता उनको. इवन लाइक जो फैब्रिक्स का वो कपड़े पहन रहे हैं उनका भी उनको नॉलेज नहीं होता है मोस्टली, बिकॉज इतना आई थिंक ध्यान नहीं दिया होगा. But now things are changing. You know? Indian men want to pay attention on their personal grooming. And now they're speaking of personal grooming. I see in your content that it's equally also, inclined to health care, hair care, sorry. Correct. So you try home remedies and, different things. You have a certain passion for hair. Where is this coming from? Just like I have always liked long hair. मैंने पहले भी like बाल लंबे रखे थे, फिर काफी साल छोटे थे, तो इस बार मैंने लाइक अभी 2 साल से फिर से आई हैव ग्रोन माई हेयर. तो आई जस्ट इट्स अ पर्सनल चॉइस आई थिंक. तो आई लव मेंटेनिंग देम एंड आई लाइक टू ट्राई होम रेमेडीज. तो मुझे बहुत मजा आता है. देन अगेन आई थॉट इफ आई एम एक्चुअली डूइंग इट इन रियल लाइफ, देन अगेन पुट इट आउट. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड पुटिंग आउट हेयर केयर कंटेंट एज वेल. So yeah, that's about it. And people are liking that kind of content. Yeah. Men are बहुत like कर रहे हैं वो. तो उसका भी बिल्कुल एक सेपरेट ऑडियंस है जी. तो जैसे धोती का एक लिमिटेड ऑडियंस है. देन हेयर केयर के लिए भी लाइक बिकॉज एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स लाइक हेयर फॉल या बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं बालों से रिलेटेड, थिनिंग, रिसीडिंग हेयर लाइन. तो hair content also is doing great. Yes, men's personal care and grooming industry is also growing. Yeah. This is amazing to see all that you're doing on social media. Also in terms of hair. I've also seen content. I thought maybe there's so much emphasis on your hair is because maybe the kind of attires you want to portray. There's a lot of drama also. There are a lot of Bollywood styles or a lot of those eras of Maharajas and Prince. So क्या ये उसके लिए वो एक कॉन्शियस नहीं था कि उसके लिए मैं बाल बड़े करूं. बट हाँ, आई एग्री दैट बिकॉज ऑफ लॉन्गर हेयर दोज काइंड ऑफ लुक्स जो मैं पुराने जमाने के या डिफरेंट इराज व्हिच आई हैव डन लाइक like thousands of years back के जो हमारे स्टाइल्स होते थे, द मॉडर्न एम्पायर एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो मैंने बहुत सारे कंटेंट उस तरीके से क्रिएट करे हैं. तो उसमें वो थोड़ा ऑथेंटिसिटी लाता है उस लुक में बिकॉज ऑफ हैविंग लॉन्गर हेयर. अच्छा. बट दैट वाज नॉट अ कॉन्शियस डिसीजन. हाँ, जस्ट हैपेंड. मतलब मेरे को बाल लंबे करने थे, बट देन आई रियलाइज कि हाँ, इट डज ऐड टू दोज लुक्स बेसिकली. रोहित, मेरा आपसे एक सवाल और है. इतने तरह के लोग आपको पसंद करते हैं. आई एम श्योर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको क्रिटिकल हो जाते हैं और आई थिंक ट्रोलिंग भी होती होगी. उस पर थोड़ा हमें बताएंगे. सो मोस्टली लकीली ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है. ट्रोलिंग सबको ही मिलती है, कोई कितना भी अच्छा हो, सबको आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो अब ट्रोलिंग मिलती भी है तो आई डोंट गेट अफेक्टेड फ्रॉम इट. मैं उसको मेरे को तो कंटेंट आइडिया मिल जाता है ऑनेस्टली. लाइक सो मेनी पीपल आस्क मी, अरे लाइक पानी पीना भूल जाओ, अब धोती पहन ली तो लाइक वॉशरूम जाना भूल जाओ. सो आई मेड अ वीडियो एक्सप्लेनिंग हाउ यू कैन गो टू द वॉशरूम. राइट. देन समबडी कमेंटेड वंस कि अब साड़ी, मम्मी की साड़ी ले ली, अब नेक्स्ट आई नो यू विल वेयर अ पर्दा ले लोगे, अब कर्टन से पहनोगे. तो आई एक्चुअली टुक अ कर्टन एंड आई ड्रेप्ड अ धोती विद इट. You had a funny take on that. Yeah, so people absolutely loved it because वो बहुत ही regal look बन के आया था जो उसमें मैंने actually curtain drape किया था. And then somebody had commented कि साड़ी is for women and why are you wearing them? So I had made another content with that. तो उससे मुझे अगर लोग ट्रोल करते हैं ना तो मुझे एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है बाकी ऑडियंस को कि साड़ी इज जस्ट अ पीस ऑफ फैब्रिक. एंड बिल्कुल पुराने जमाने में ऑल्सो लाइक साड़ी को भी धोती कहा जाता था. अच्छा. हाँ, करेक्ट. सो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ फैब्रिक. इट माइट बी लिटिल लॉन्गर देन अ धोती. तो इतना इसमें भेदभाव की जरूरत नहीं है कि साड़ी इज जस्ट फॉर वुमेन एंड धोती इज जस्ट फॉर मेन. अगर आप साड़ी यूज करते हैं तो उसमें एक सस्टेनेबिलिटी का एंगल आ जाता है बिकॉज घर में इतने सारी
आपकी मॉम्स के पास या वाइफ्स के पास होती हैं साड़ीज, तो अगर आप उन्हीं को यूज कर लेते हैं जैसे कि मैं करता हूँ, तो आपको बार बार यू डोंट हैव टू बाय अ न्यू आउटफिट ऑल द टाइम. बिल्कुल. बिकॉज आई वेयर धोतीज अ लॉट. अब आप सोचिए हर ओकेजन में मैं धोती खरीदने जाऊँ तो जी. कितना लाइक इट विल बी इट वोंट बी लाइक इको फ्रेंडली ऑल्सो, बिकॉज इतना मैं फैब्रिक्स खरीद रहा हूँ एंड देन स्टोरेज ऑल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो आई यू पुट द साड़ीज दैट माई मॉम हैज टू गुड यूज, एंड इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने वीव्स हैं, इतने पैटर्न्स हैं, इतने कलर्स हैं, तो व्हाई नॉट लाइक वेयर इट विद प्राइड. वाओ. तो ट्रोल्स जो भी होता है उसको आई लाइक, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ट्रोल्स आ रहे हैं एंड यू आर ओके विद इट, एंड उनको तोड़ने का आपका तरीका बड़ा अच्छा है कि आप उन्हीं से ही बहुत बढ़िया कंटेंट निकाल रहे हैं. बिल्कुल. तो आई थिंक ट्रोल इज बेसिकली लोगों में डर कि क्या हमारे लिए ये फैशन है, दूसरा समझ नहीं है इंडियन फैशन की तरफ, और तीसरा मेरे ख्याल से इंटरेस्ट नहीं है या उतना प्रेम नहीं है इंडियन हेरिटेज में. आई थिंक ट्रोलिंग कम्स फ्रॉम अ स्पेस ऑफ इनसिक्योरिटी. Yes. मतलब जो खुद की लाइफ में अब नहीं है तो किसी और को देख के थोड़ा लाइक यू ट्राई टू पुल देम डाउन. पर फैशन तो सबके लिए है, और ऐसा कुछ नहीं कि आपके लिए यू हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा पेनीज टू. दे सी कि लाइक दिस गाय whoever they are trolling, they see their success and they see कि कितना अरे इनको इतने views आ रहे हैं, इतना लोग पसंद कर रहे हैं, तो you know चलो let's try to pull them down. बिल्कुल. And sometimes they just do it for attention. Like बहुत लोग ऐसे कुछ खराब सा लिख देते हैं, फिर मैं reply करता हूँ तो they say sorry. They think कि नहीं दिखेंगे comment. And sometimes आजकल ट्रोलिंग का ये चल रहा है कि लोग ना कूल बनने के लिए जबरदस्ती करते हैं कमेंट. Right. तो ऐसा है, कोई रीजन भी नहीं होगा तो फिर भी करते हैं लोग कमेंट समटाइम्स. सो या, बट इट्स अप टू अस कि उसको अगर आप इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर यू कैन नॉट गेट अफेक्टेड बाय इट. Yes. वो आपको मान लेना पड़ेगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ. एंड जैसे आपने बताया, आपका मैसेज बहुत खूबसूरत है, क्योंकि फैशन जो है वो सेलिब्रेट करता है अपनी खुद की आइडेंटिटी को, अपनी खुद की पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी को, कि आपकी क्या बिलीव्स हैं, आप किसके लिए स्टैंड करते हैं. तो फैशन यही नहीं है कि आपने कोई एक आउटफिट पहन लिया, फैशन से आपको यू नो एक वे मिल जाता है अपने को बेटर प्रेजेंट करने का, एक कॉन्फिडेंस आता है. तो फैशन हर मर्द के लिए है, चाहे वो कॉलेज वाला है, चाहे वो यू नो ऑफिस जा रहा है, या टू द ग्रैंड पेरेंट्स. सो आई थिंक यस, दिस इज ब्यूटी ऑफ फैशन. सो किस तरह की भी ट्रोलिंग आ रही है, आई थिंक इवेंचुअली यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ प्लेस वेयर यू नो द इंडियन मेन विल सेलिब्रेट फैशन. Absolutely. On this note, Rohit, I am very thankful that you have come to our show, and want to congratulate you to do what you're doing, which is amazing in Indian heritage fashion. Thank you so much. It was a pleasure talking to you. Thank you. And I was so happy to be here and to be talking to you. And to my audience, I would like to say that, accept our culture, try to embrace it. And when I talk about dhotis, I don't tell you कि आप हमेशा धोती ही पहने या पैंट्स ना पहने, एंड बिल्कुल ही आप हर टाइम इंडियन वेयर में ही रहें, वो मेरा लॉजिक नहीं है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डोंट बी अशेम्ड ऑफ इट, एंड बिकॉज सम पीपल स्टिल फील एम्बैरेस्ड एंड दे माइट नॉट फील वेरी कॉन्फिडेंट. तो डोंट बी अशेम्ड ऑफ इट एंड स्टार्ट इम्बाइबिंग इट लिटिल बिट इन योर लाइफ. तो आपको भी अच्छा लगेगा. इट्स क्वाइट कंफर्टेबल, इट्स क्वाइट कन्वीनियंट, and it's not at all something that should make you feel embarrassed. So try to accept our tradition and culture. So I am doing it in the form of dhotis and kurtas, and you can do it whatever way you like, in fact. So yeah, that's lovely, the ending beautiful message, Rohit. Thank you so much for coming on our show, Voice of Mosaic. Thank you. My pleasure. Thank you.